गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 17 आपके सामने है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। 6 मार्क्स के क्वेश्चन में आने के अधिकतर चांसेस रहते हैं क्योंकि लंबा है, लेंथी क्वेश्चन है और समझ में ध्यान से देख लिया तो अच्छी तरीके से समझ में आ जाता है और अगर ध्यान से नहीं देखा तो कुछ भी समझ में नहीं आता है। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि एक एक चीज़ को ध्यान से देखें और क्या कंसेप्ट इसके पीछे छिपा हुआ है इस क्वेश्चन को ध्यान से देखें। लेंथी क्वेश्चन है इसलिए ध्यान से देखना बहुत आवश्यक है। 6 मार्कर में आने के बहुत ज्यादा चांसेस रहते हैं इस क्वेश्चन के। तो आप ध्यान से देखिए इसको। एलएचएस एलएचएस इक्वल टू आपके पास टेन थीटा अपॉन 1 माइनस कोट थीटा प्लस कोट थीटा अपॉन 1 माइनस टेन थीटा। ओके, ये एलएचएस आपने राइट डाउन कर लिया। अब आप एक काम कीजिए कि यहां पर एलएचएस को एक काम कीजिए, इधर से लिखना शुरू कीजिए। इक्वल टू टेन थीटा को आप साइन थीटा अपॉन कोस थीटा लिख सकते हैं, तो साइन थीटा अपॉन कोस थीटा लिख दीजिए। ठीक है, राइट डाउन द टेन थीटा इन रेस्पेक्ट ऑफ साइन थीटा अपॉन कोस थीटा एंड कोट थीटा, राइट डाउन द कोट थीटा इन रेस्पेक्ट ऑफ कोस थीटा अपॉन साइन थीटा, देन 1 माइनस कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। राइट डाउन कर सकते हैं, बिल्कुल कर लीजिए आप। प्लीज राइट डाउन द प्लस साइन हियर। नाउ cot theta, convert the cot theta in cot theta equal to cos theta upon sin theta. Then you write here cos theta upon sin theta. Now 1 minus, we know that what is the tan theta? Tan theta equal to sin theta upon cos theta. Then you write here sin theta upon cos theta. Clear? Now see the next step. Take the LCM of denominator, then you get sin theta upon cos theta upon sin theta minus cos theta upon sin theta plus cos theta upon sin theta as it is. You take the denominator here again, you get the cos theta minus sin theta upon cos theta. Clear? Now see the next step. You see here, when we reciprocal this, you get what you get? You get here sin theta upon cos theta into sin theta. This denominator is reciprocal, so you get sin theta minus cos theta. Okay, or now what is here? Here cos theta upon sin theta. Clear? And denominator is reciprocal, then you get the cos theta upon cos theta minus sin theta. Clear? Okay, now what's the next step? Next step is here sin theta into sin theta, sin square theta, and cos theta sin theta minus cos theta. Clear? Okay, now here plus cos theta into cos theta, cos square theta, and sin theta multiply by cos theta minus sin theta. Clear? Here is the step minus sin theta. Okay, now you see that both the denominator, that here cos theta minus sin theta and here is sin theta minus cos theta. Then both the denominator को सेम करने के लिए आप क्या करेंगे कि इसको भी इसमें से माइनस कॉमन ले लेंगे। इसमें से माइनस कॉमन ले लेंगे तो आपके पास यहाँ पर sin थीटा माइनस cos थीटा बच जाएगा। जो माइनस कॉमन आउट होगा वो माइनस बाहर निकल कर प्लस इंटू माइनस हो जाएगा। तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, आप यहाँ पर sin स्क्वायर थीटा
साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कोस थीटा और साइन थीटा माइनस कोस थीटा. Okay, and minus sign here. Put minus sign here because you take the common out minus sign. Minus sign को आप यहाँ से common out ले लेंगे. Then you get cos square theta on the numerator and in the denominator sin theta, and here is sin theta becomes positive and cos theta becomes negative. Clear? Because you take the denominator common out. Denominator common out, माइनस साइन कॉमन आउट. माइनस साइन कॉमन आउट क्यों लिया? उसका रीजन ये है कि दोनों के डिनोमिनेटर को सेम बनाना है अपन को. तो दोनों डिनोमिनेटर सेम बन गए. नाउ यू सी हियर, टेक द एलसीएम अगेन. फर्स्ट टर्म एंड सेकंड टर्म, टू टर्म एक्सप्रेशन हियर. देन यू टेक द एलसीएम अगेन. You get the LCM, then you see here your LCM is such type cos theta into sin theta, cos theta into sin theta, and sin theta minus cos theta, and sin theta minus cos theta. Okay, this is your LCM. Now this quantity is divided to this quantity. This whole quantity is divided by this quantity. Then cos theta to cos theta cancel out. Sin theta minus cos theta to sin theta minus cos theta cancel out, and what's remain is sin theta. Then sin theta is multiplied to the numerator. You get sin cube theta minus sin. Same procedure applied here. You get cos cube theta. Cos cube theta. Because this quantity is divided to this quantity, then sin to sin cancel out. This quantity cancel out, remains cos theta, and cos theta is multiplied to cos square theta. You get the cos cube theta. Now what's the next step? Next step is that you know the when identity. What identity? You see here sin cube theta, a cube minus b cube. a cube minus b cube की आइडेंटिटी क्या है? ये आइडेंटिटी आपके पास कि आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं, sin थीटा माइनस cos थीटा and sin square theta plus sin theta cos theta and plus cos square theta. Clear? Here what's the result? Here cos theta and sin theta, and denominator as it is sin theta minus cos theta. Denominator as it is a cube minus b cube की आइडेंटिटी. You see here, what's the a cube minus b cube? a cube minus b cube is equal to a minus b and a square plus ab minus b square. नहीं, plus b square. Sorry. a cube minus b cube is equal to a minus b, a square plus ab plus b square. Clear? ये आइडेंटिटी होती है. हमने इस आइडेंटिटी को इस फॉर्म में लिख दिया. या रीजन में आप ये आइडेंटिटी पुटअप कर सकते हैं. हेंस रीजन में a क्यूब माइनस b क्यूब इज इक्वल टू a माइनस b एंड a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर. रीजन में आप पुटअप कर सकते हैं. ठीक है, रीजन. नाउ व्हाट्स you see here that this quantity is cancelled out by this quantity. Clear? Okay. You remains only this quantity. So please write down this sin square theta plus, देखो sin square theta plus cos square theta, both quantity becomes the 1. So you put up 1 here. 1 plus sin theta and cos theta upon cos theta into sin theta. Now what's the RHS becomes? RHS आपको क्या चाहिए? आपको RHS चाहिए है 1 plus tan theta plus cot theta. तो आपको 1 plus tan theta plus cot theta लाने के लिए आपको sin square theta plus cos square theta है, उसको अगर आपने 1 कर दिया तो फिर ये क्वांटिटी नहीं आ पाएगी, क्योंकि आपको डिनोमिनेटर को ब्रेकअप करेंगे, 1 upon this करेंगे तो sin cos sec थीटा इंटू कोसेक थीटा हो जाएगा.
और दिस अपॉन दिस करेंगे तो 1 आ जाएगा। तो आपको यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा को आपको 1 नहीं बनाना है। आपको यहाँ पर यही ध्यान रखना है, इसको हम साइन स्क्वायर थीटा ही रहने दे रहे हैं। क्या करें? साइन स्क्वायर थीटा ही रहने दे रहे हैं। ये चीज ध्यान रखें आप अच्छी तरीके से, और इसको आप प्लस कोस स्क्वायर थीटा ही रहने दें। आपको आइडेंटिटी यूज ही नहीं करनी ना, हमें जरूरत होगी तो यूज करेंगे, हमें जरूरत नहीं है। हमें आरएचएस में लाना है किसी तरीके से आरएचएस, और आरएचएस लाने के लिए हम अगर आइडेंटिटी का यूज कर देते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 यूज कर देते हैं, तो आंसर किसी हालत में नहीं आएगा। तो आप इसको ऐसे कैसे रहने दीजिए। अब आप देखिए डिनोमिनेटर को ब्रेकअप कीजिए, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन दिस, तो यहाँ पुटअप कीजिए साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कोस थीटा साइन थीटा प्लस साइन थीटा कोस थीटा अपॉन कोस थीटा साइन थीटा, साइन थीटा कोस थीटा अपॉन साइन थीटा कोस थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा एंड कोस थीटा। क्लियर? तो आप देखिए साइन स्क्वायर थीटा से साइन थीटा कट गया, साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है? साइन इंटू साइन, तो साइन इंटू साइन से वन साइन कट गया, तो आपके पास क्या बच गया यहाँ पर? साइन थीटा अपॉन कोस थीटा बच गया, प्लस दिस टू दिस कैंसल आउट, तो हियर 1 बच गया, और यहाँ पर कोस थीटा इंटू कोस थीटा से 1 कोस थीटा कैंसल आउट हो गया, तो आपके पास क्या बच गया कि कोस थीटा अपॉन साइन थीटा रिमेन्स। क्लियर? तो व्हाट्स द वैल्यू? वैल्यू इज हियर, देखो टेन थीटा प्लस 1 प्लस कोट थीटा इक्वल टू RHS, हेंस प्रूव। क्लियर स्टूडेंट? आप देख सकते हैं टेन थीटा प्लस 1 प्लस कोट थीटा, टेन थीटा प्लस 1 प्लस कोट थीटा, RHS आ चुका है। तो आपके पास ये बहुत काफी लेंथी क्वेश्चन था, समझने के लिए काफी अच्छी टेक्निक यूज हुई इसमें। ए क्यूब माइनस बी क्यूब की आइडेंटिटी का यूज हुआ है, जो आपके 9th क्लास की आइडेंटिटी, 10th क्लास में ये आइडेंटिटी पढ़ाई नहीं जाती है, और 10th क्लास में भी है कहीं ना कहीं, तो इसका यूज यहाँ पर है। ठीक है, 9th क्लास में सारी आइडेंटिटीज का यूज है, तो आप प्लीज 9th क्लास की आइडेंटिटीज को ध्यान जरूर रखें, और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और जितना हो सके उतने वीडियो को शेयर करें, ताकि और अधिक से अधिक लोगों का फायदा हो सके। क्लियर? थैंक यू वेरी मच।